Hi everyone, welcome to Success Series. This is your educator Shrishti, and today we are going to have a look at chapter 5, which talks about judiciary. Through this chapter, I am going to tell you everything that is required with regard to basic concepts that revolve around the judicial system of the nation, that is our judiciary. Since it is a major organ, since it is one of the major organs of government, so we definitely have to see that what are the powers that are given to it, what is the role that is there, various terminologies that are associated to this. So that is why this chapter will become very, very important for you. Let's proceed with the chapter, guys, and let's see what all can we learn from here. All right, so before we begin with the chapter, I have a request to make that please follow Success Series on Facebook, Instagram, Twitter, and if you are watching this lesson right now, please hit the bell icon. Also, subscribe to our channel so that you keep receiving all updates which are related to academics and other trivia. So, following us will keep you notified about the major happenings that keep occurring, and you will be updated with everything that is there. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जुडिशरी. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना होगा देर आर थ्री ऑर्गन्स, राइट. वन इज़ द लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हमने पढ़ा है. नाउ सिंस वी नो दैट देर इज़ अ लॉ मेकिंग प्रोसेस, वी ऑल्सो नीड टू स्टडी दैट ये लॉज कौन इन्फोर्स करता है, एंड दैट इज़ द जुडिशरी, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर ब्रांच विच इज़ नोन एज द एग्जीक्यूटिव, and executive helps to execute the laws that are framed by the legislature. In this chapter, we will be majorly looking into the role of the judges and what we know as the court system in India. Okay, so we are going to have a glimpse, that is we are going to have a look into the range of work done by the courts in India. आप हमेशा सुनोगे कि ये litigation pending है, ये cases pending है. This is what can be done. So the branch that deals with all of this, it is the judiciary, and today we are going to read the major happenings that revolve around your judiciary. Moving forward, to enforce the rule of law, we have a judicial system that consists of courts that a citizen can approach when a law is violated. अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो है आपके लिए, वो है ये अंडरस्टैंड करना दैट व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ. सो बेसिकली इवन प्रीवियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ. एक तो ये है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ. चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप पॉलिटिकली पावरफुल हो, यू विल ऑलवेज बी बाउंड टू द लॉ ऑफ द नेशन. एंड सेकेंड थिंग इज लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी. ओके, इन दोनों चीज़ों को मिला करके क्या मिलता है हमें, रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे रूल क्या होता है, लॉ आपका रूल होता है, एंड नो बडी कैन बाई टेक द लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स. सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश की, जो कि हमें बहुत सारी मैकेनिज्म्स के थ्रू देखने को मिलती हैं. एंड जब भी कोई लॉ आपका वायलेट होता है या फिर यू फील दैट सम इनजस्टिस हैज़ बिन डन टू यू, देन व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ योर take on that. You can visit the court and you can see and you can file the case. With that you will get to know कि आपका केस कहाँ जाता है. Like the judge will now decide whether something wrong has been done to you and he will establish who is guilty. So in this way justice can be achieved. दोनों sides को ये मौका दिया जाता है to represent their selves. Okay, it is not just one side. All of this is implemented because we have a judiciary in place. So that is the essence of this chapter. As an organ of government, judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. अब ये हम लोग कैसे कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर जुडिशरी नहीं रहती तो जो भी हमारे राइट्स हैं उन्हें कौन इन्फोर्स करता. सपोज़ ये राइट्स हमें नहीं दिए जा रहे थे, सपोज़ जो पावर में लोग बैठे हैं अगर वो हमारे राइट्स को इनक्रोच कर रहे थे या फिर वो कुछ ऐसे लॉज बना रहे थे विच वॉज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, देन हु वुड सेव आवर डेमोक्रेसी. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी टू बी देयर, क्योंकि ये लोग इंडियन डेमोक्रेसी को फंक्शनल रखते हैं, सिस्टमैटिक रखते हैं और इन द राइट डायरेक्शन वर्क करवाते हैं. And why and how can it do so? It can do so because it is independent.
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है. व्हाट डज इट मीन टू बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. बट नॉट राइट नाउ. आफ्टर आई एक्सप्लेन टू यू द रोल ऑफ जुडिशरी, देन मैं आपको बताऊंगी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से हमें क्या समझ आता है. व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन, दिस वी विल बी लर्निंग लेटर इन द चैप्टर. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली, ये भी मैं आपको बताऊंगी व्हेन आई टेल यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर of courts in India and how are they related. We will see that as soon as we move ahead with the chapter. अब यहाँ पे एक कोट है, all the rights secured to the citizens under the constitution are worth nothing and a mere bubble except guaranteed to them by an independent and virtuous judiciary. So यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मान लो आपको कितने ही राइट्स दे देती हैं, लेकिन उनका मीनिंग कभी भी फुलफिल नहीं होगा जब तक उनको इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं हो. For example, in school, somebody makes you the monitor. But if you're not given power to run that class properly, then you will never be able to do anything about it. So it cannot be a mere dummy, right? Constitution will be a mere dummy अगर आपके laws जब breach होते हैं तो उनको enforce करने वाला कोई ना हो. एंड फॉर दिस इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक जुडिशरी हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंडिपेंडेंट रहे. बाय इंडिपेंडेंट व्हाट डू वी मीन, आई टेल यू. एंड वर्चुअस रहे, दैट मीन्स यू कैन रिलाई ऑन देम. द पीपल शुड बी स्किलफुल, द पीपल हु आर जजेस दे शुड बी very very extraordinary in their field. They should be full of virtue, they should be having good quality, right? So in this way you will be able to seek justice, and that is why the role of judiciary becomes important. Coming to role of judiciary, अब जैसे कुछ भी ऐसी केसेस होते हैं तो आप वो कहाँ से फाइल करोगे, यू विल फाइल इट इन द कोर्ट्स, राइट? सो द कोर्ट्स हैव टू टेक द हियरिंग. अब ये अलग लेवल्स पे होते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे. बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं. सी, वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड, सो देर आर अ लॉट ऑफ केसेस दैट आर ऑलवेज कमिंग अप. ओके, एंड इस समय जुडिशरी का रोल ये रहता है कि दे पार्टेक देयर डिसीजंस, या फिर वो लोग एक प्रॉपर डिसीजन दे जिससे कोई भी मैटर सॉल्व हो सके. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन से दैट टीचर्स आर नॉट अलाउड टू बीट स्टूडेंट्स, दैट मीन्स फिजिकल होना नॉट अलाउड. ओके, फिजिकल वायलेंस, फिजिकल अब्यूज करना नॉट अलाउड. They can also say that male members cannot dominate the girl, the wives. Okay, that is the domestic violence. Then they can talk about water sharing. मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होते ही रहता है. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इफ यू सी इन दोज रीजन्स, दे हैव प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक रिवर है जो 2-3 स्टेट से निकल रही हो, सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पानी, व्हाट विल बी द मोड ऑफ कंडक्ट इफ देर इज एनी प्रॉब्लम दैट अराइजेज. सो इस तरीके के सारे डिसीजंस भी जुडिशरी ले सकती है. ऑल्सो दे कैन पनिश पीपल फॉर क्राइम्स. इफ यू डू एनी काइंड ऑफ थेफ्ट, if you do any kind of dowry, if you do any kind of murder, so all of this they have specific impositions of penalties, imprisonment, etc. so इन सारी चीज़ों को enforce करती है हमारी judiciary, which is well versed with the laws of the nation. Now coming to the role of judiciary, the work that the judiciary does can be divided into the following. So सबसे foremost and सबसे important role है dispute resolution. What do you mean by dispute? Dispute is a point of disagreement. अगर हम लोग दोनों किसी भी चीज़ में डिसअग्री कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे कोई एक फाइट या फिर कोई एक डिसअग्रीमेंट से मतलब बात ना बने, कोऑपरेशन नहीं हो, सो उसको एक डिस्प्यूट कहेंगे. सो इनको रिजॉल्व करना इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी. इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स, और बिटवीन इवन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और या फिर स्टेट एंड लोकल. तो इस तरीके से कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो वी कैन अप्रोच द जुडिशरी एंड इट ट्राइज टू रिजॉल्व इट. बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट भी कुछ अगर होता है तो वो भी ये लोग करते हैं. अब इनके लिए मेथड्स बहुत अलग अलग होते हैं. एक हो जाता है कि आप लोक अदालत के पास भी जा सकते हो, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जैक्ट जुडिशरी, लेकिन उनकी बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमने ये इस्टेब्लिश किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव आर्बिट्रेशन, रिकन्सिलिएशन, जहाँ पे लोग अपने बीच में ही उस ग्रीवांस को रिड्रेस कर लेते हैं. बट इफ़ नथिंग वर्क्स देन यू अप्रोच द कोर्ट्स, फाइल द केसेस एंड लीगल एक्शन लेकर के वो लोग आपकी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं.
मूविंग टू द नेक्स्ट रोल विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू. सो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग कुछ नहीं बट ये होता है दैट इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स लेड डाउन है, राइट, फॉर ऑल द पीपल. अब जब ये राइट्स वायलेट होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर लेजिस्लेचर ब्रीच करती है, दैट मीन्स इफ इट मेक्स लॉज विदाउट कीपिंग एन आई ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है. मान लो लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ लाता है जिससे मेजॉरिटी को बेनिफिट मिल रहा हो और माइनॉरिटी को नहीं. सो जुडिशरी के पास पावर होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड कर सके. सो दैट मीन्स इट कैन स्ट्राइक डाउन द लॉज दैट आर पास्ड विच आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे मेंशन किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर का. तो मैं ये आपको बता देती हूँ, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से ही आया है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट वॉज intrinsically there in the constitution. It was not mentioned कि this points are the basic structure, but judiciary ने कुछ points को एक basic structure बना दिए जो it feels कि it's very very necessary for the smooth functioning of Indian democracy. अगर उन बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में कुछ भी लॉज बनते हैं तो विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बीइंग द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी उनको स्ट्राइक कर देगी. सो इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. मतलब आप जुडिशियली किसी चीज़ को रिव्यू कर रहे हो. यहाँ पे आप किस चीज़ को रिव्यू कर रहे हो? जो लॉ ऑलरेडी बन गई लेजिस्लेचर द्वारा. वहाँ पे अब जजेस को लगा कि नहीं भाई ये तो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, तो वो लोग अपनी पावर को इस्टेब्लिश करेंगे, जुडिशियल रिव्यू को इन्वोक करेंगे एंड दे विल से दैट दिस लॉ इज नॉट according to the principles of the constitution, it is ultra vires and that is why they will say that this law will not be acceptable. So इस तरीके से वो लोग लेजिस्लेचर पे भी कंट्रोल रख सकते हैं if it goes against the constitution and the nation. Moving to point 3, that is the point 3 role of the judiciary, upholding law and enforcing fundamental rights. अब मान लीजिए आपको एक बहुत बेसिक चीज़ है, हेलमेट पहन के you have to ride, okay? You can't drink and drive. For example, if there was no judiciary, if there was nobody to uphold the law, if there was nobody to enforce it, would we be scared? हमें तो यही पता रहता कि nobody will be able to find out any solution for this. लेकिन in these cases even they can do it, and even a citizen who feels that if there is any law that is being violated or if their fundamental rights are being violated तो वो लोग कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी जुडिशरी की रोल हो जाती है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इंटैक्ट रखे और बाकी जो भी लॉज बनाए गए हैं नेशन में उनको भी इन्फोर्स करे. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट रूल. फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट्स ने रूल किया कि आर्टिकल 21 ये एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, राइट, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत बार इंटरप्रिटेशंस के द्वारा इसके डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड कर दिया है, राइट टू फूड भी इंक्लूड कर दिया है, बिकॉज दे फील दैट इफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट देयर देन ऑटोमेटिकली आपकी राइट टू लिव इनवैलिड हो जाती है. राइट टू लाइफ उतनी सही नहीं रहती इफ़ यू डू नॉट हैव द राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड एट्सेट्रा. सो इंटरप्रिटेशंस के द्वारा कोर्ट्स हमेशा डेफिनेशंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड दैट इज हाउ दे इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट्स. ओके, कमिंग टू द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी विच इज़ द सुप्रीम कोर्ट. ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये रिपब्लिक डे के दिन इस्टेब्लिश हुआ था, विच इज़ 26 जनवरी 1950. This was the day when India became a republic and we also celebrate our Republic Day on this very same day. So this is the date, okay. प्रायर टू दिस क्या था? इनका एक प्रिडेसेसर था. द नेम वॉज नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. 1937 से 1949 तक हम इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे. एंड ये पहले कहाँ था? ये पार्लियामेंट हाउस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, वहाँ पे लोकेटेड था. बट नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली ऑन मथुरा रोड सिंस 1958. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. व्हेन डिड इट कम इन टू बीइंग एंड वेयर इज इट प्रेजेंटली लोकेटेड? इट इज़ वन ऑफ द topmost courts in India. The major matters that cannot be heard anywhere are heard in the Supreme Court. Now we come to this. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence
the judicial process. The Indian constitution protects against this kind of situation by providing for independence of judiciary. तो हमने एक बहुत ही important characteristic की बात की judiciary की, which is what? Which is its independence. So what do you mean by independence? कि कोई भी powerful लोग हो, या फिर कोई भी rich इंसान हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर somebody who is the prime minister or the president who is enjoying a lot of power in the nation, वो लोग अपने whims and fancies के द्वारा कोर्ट्स को ट्वीक नहीं कर सके. सो दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कि जुडिशरी विल नॉट बी बाउंड टू एनीबडी, नो मैटर वेदर यू आर पावरफुल, वेदर यू आर रिच, इट डज नॉट मैटर. जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्राइमरी एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल ट्रीट ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वली. हालांकि बहुत सारे लूप होल्स का यूज़ किया जाता है, लॉट ऑफ इंटरफेरेंस इज देयर, बट अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इट प्रोवाइड्स इज फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो बहुत हद तक मेंटेन भी की जाती है. एंड जब भी ये इंक्रोचमेंट वाली सीन देखने को मिलती है, देन अगेन बेस्ड ऑन दिस पावर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी ट्राइज टू कीप इटसेल्फ अलूफ एंड ब्रिंग आउट द राइट डिसीजंस. अब आप ये मान लो अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो जो रूलिंग पार्टी है वो प्रेशराइज कर देती, राइट. एंड इस प्रेशराइजेशन के द्वारा what would have happened? The judiciary would be bound to say things in the favor of the ruling party. But that is not the case. Judiciary is independent. Nobody can influence it. And इसी independence के द्वारा courts एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है कि किसी को भी misuse of power is not allowed. बी इट द लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं या फिर जो लॉज एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो लोग कभी भी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अनदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इज द जुडिशरी. एंड दिस इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो पहले मैंने आपको बताया था इन थ्री, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो थ्री ऑर्गन्स हैं, इनके सबके स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस अलग अलग हैं. ये लोग एक दूसरे के वर्किंग्स में कभी भी इंटरफियर नहीं करते हैं. दे हैव सेपरेट पावर्स, बट व्हेन देयर आर क्लैशेस, देन द जुडिशरी कैन इंटरवीन एंड सी एंड इम्प्लीमेंट द राइट लॉज दैट आर देयर इन द नेशन. सो कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं है एंड दे डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. अगर ऐसा होता तो मैंने आपको अबव में बता दिया दैट दे वुड हैव टू फेवर द रूलिंग पार्टी. अगर वो लोग गलत भी कर रहे हों, लॉज ब्रेक भी कर रहे हों, तब भी उनको इनके फेवर में बात करनी पड़ती, एंड दैट वुड नॉट इंश्योर अ स्मूथ डेमोक्रेसी. दैट इज वाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव देयर ओन सेपरेट पावर्स एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. कमिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, सो इसी सेपरेशन की वजह से अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेसेस ऐसे हैं कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सके. ओके, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल that in the High Court as well as the Supreme Court the judges should be appointed with very little interference. क्योंकि मान लीजिए आज किसी ने आपको अपॉइंट किया, so you will be under that person, you will have to listen to the terms and conditions of that person until and unless you don't have a way out, right? Similarly, if the government was employing and removing the judges, then the judges would always have to favor them. वो कभी भी अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते. दैट इज़ वाई अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेसेस ऐसे हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंटैक्ट रखें. Once the judges are appointed, it is very difficult to remove them until and unless बहुत ज़्यादा impeachment procedure या फिर बहुत सारी cases होते हैं in which they can be removed, which is actually very cumbersome and very difficult. और ये क्यों रखा गया? ताकि वो लोग independent रह सके, उनकी functioning में कोई ज़्यादा interfere करके law को अपने हाथ में नहीं ले. कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, सो ये 3 लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं. सबसे नीचे हैं सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि हर एरिया में देखने को मिलती है, हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर तहसील लेवल कह लो. इसे टाउन्स में भी देखने को मिलते हैं. ये काफ़ी सारे केसेस सुनती हैं और जजमेंट्स पास करती हैं. सेकेंड कोर्ट्स कौन से हैं? हाई कोर्ट. तो ये आपके स्टेट वाइज कोर्ट हो गए. Is it necessary that every state has a court? No. Okay. Some courts and some states are also shared between one or more states. Each state has a high court which is the highest court of that state. Currently कितने high courts हैं? 25 high courts हैं. That means not all states have a high court. हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे? यू कैन रिमेंबर इट एज BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, विच स्टैंड्स फॉर बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा. ओके, 1862 में. सो सबसे पहले हाई कोर्ट्स आपके ये 3 प्रेसिडेंसीज स्टेट्स में आए थे.
हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कब आया? इट केम अबाउट इन 1966. इंपॉर्टेंट. पंजाब एंड हरियाणा का क्या अलग अलग कोर्ट है? नहीं, दे हैव अ सिमिलर हाई कोर्ट विच इज लोकेटेड एट चंडीगढ़. सो इस तरीके से यू कैन सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स. कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दैट इज असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. इनका क्या है? इनके कॉमन हाई कोर्ट है. कहाँ पे? गुवाहाटी में. वेयर इज गुवाहाटी? गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम. एंड गुवाहाटी कोर्ट का एक ब्रांच है एजोल में विच इज़ एट मिजोरम, राइट. सो इस तरीके से बहुत सारी स्टेट्स एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर भी करते हैं. तो उन स्टेट्स में जब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है दे कैन अप्रोच द कॉमन हाई कोर्ट. 2019 लेटेस्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इनके सेपरेट हो गए हाई कोर्ट्स क्योंकि इनके स्टेट्स भी अलग हो गए और इन्होंने अलग अलग हाई कोर्ट्स अपने इस्टेब्लिश कर लिए. Moving to appellate power. What is the meaning of appellate power? Have you heard of the power of appeal? मान लीजिए एक क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, राइट. अपील करते हैं वो लोग. दे अपील दैट द प्लेयर इज आउट. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर इज गिवन आउट बाय द अंपायर, बाय द मेन अंपायर ऑन ग्राउंड. बट द प्लेयर को लगता है कि नो वी आर नॉट आउट, तो उनको एक रिव्यू मिलता है ना. they have this power of review where it goes to the third umpire and then they tell you whether it is correct or not. वो लोग कभी कभी रिवर्स भी कर देते हैं डिसीजन को. सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग कि मान लीजिए आपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में अपने केस को रखा, लेकिन यहाँ से जो जजमेंट आई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है. यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट. That means you can appeal with the same case to the High Court. Similarly, you can appeal to the Supreme Court. इसमें बहुत सारे cases होते हैं, but based on this appellate power, you can go to the higher bodies if you feel that the judgment passed by the lower court is not fair. Okay, and this was established in one case, which is State of Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others. आपको केस के डिटेल्स में नहीं जाने हैं, बट आपको ये नाम याद रखना है कि this is the case that established the appellate power in the Indian judiciary system. Now, when we are talking about the judiciary, it is very important for us to analyze the difference between criminal law and civil law. So, what is the difference? क्रिमिनल लॉ में वो सारे ऑफेंसेस आते हैं जिनको लॉ एक ऑफेंस की तरह डिफाइन करता है. सो दिस इज मोर हार्श इन नेचर. ओके, दिस आर नॉट पर्सनल थिंग्स, दिस आर बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने चोरी कर ली, आपने किसी को हैरस कर दिया, ईव टीज कर दिया, आपने डाउरी वाली मांग रख दी, आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ कर दिया. सो दिस आर थिंग्स दैट इनवाइट एंड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस, क्योंकि ये बहुत ही हार्श इन नेचर होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ. और सिविल लॉ क्या होता है? विच डील विद सिविल केसेस. सिविल मतलब लोगों के बीच के केसेस. ये ज़्यादातर इन तरीके के ऑफेंसेस नहीं होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को एक एक्सीडेंटल हैपनिंग से गुजरना पड़ रहा हो. सो इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. किसी के राइट्स अगर लिए गए हों तो दैट विल फॉल अंडर सिविल लॉ. फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड. अगर कोई भी रेंट इशू आ गए, डिवोर्स केसेस आ गए, personal, something that is more personal in nature will be a part of your civil law, and something that has a larger ramification, that will be a part of your criminal law. Next difference is if found guilty. अगर आपने कोई एक criminal conduct किया है and then the court establishes you as guilty, that means आप accused बन जाते हो, तो आपको या तो जेल भेजा जाएगा which is imprisonment, या फिर आपको फाइन भी किया जा सकता है based on the law regarding that offense, laws regarding that offense, right. जो भी लॉ प्रिवेल कर रही है कि इस केस में इस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी, दैट कैन बी गिवन. अंडर सिविल लॉ व्हाट इट इज़, यहाँ पे आपको सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ मिलती है. यहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट इम्प्रीजनमेंट. ओके, यहाँ पे इट इज़ नॉट ऑल्सो अबाउट फाइन, इट इज़ अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ. सो स्पेसिफिक रिलीफ किस में मिलती है? सिविल लॉ में. फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में कोई इशू हो गया, कोर्ट ये कह सकती है कि आपको ये फ्लैट वेकेट करना पड़ेगा एंड जितने भी दिनों का पेंडिंग रेंट है यू हैव टू पे टू द इंडिविजुअल. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेनेंट है उसने कुछ गलती की है, तो लैंडलॉर्ड जो है उनको लॉस हो सकता है, उनको हार्म पहुँचा जा सकता है. सो दैट इज़ वाई बाय द प्रोसेस ऑफ सिविल लॉ दिस काइंड ऑफ केसेस आर डेल्ट विथ. Moving next, identify the branch of law. Now that we have spoken about criminal and civil law, a group of girls are persistently harassed by a group of boys while walking to school.
So automatically, based on the previous example, you can understand that this will fall under a criminal offense. Okay, it has a larger ramification. A tenant who is being forced to move out files a case in court against the landlord. So ये थोड़ा सा पर्सनल टाइप का लॉ है एंड नेचर है एंड ऑफेंस है, सो इट विल कम अंडर सिविल लॉ. Moving forward, does everyone have access to courts? This is a very very important thing. क्या सब कोई कोर्ट जा सकते हैं? मैम, if I am poor, can I go? Ma'am, if I am a girl, can I go? Or if I am rich, do I have equal justice that I can seek? या फिर मुझे कुछ benefits मिलेंगे? No, that is not the case. Be it any citizen of India, if you are a citizen, you have the equal right to approach the courts. So in principle तो ये वाली right दी गई है कि कोई भी citizen of India वो courts को approach कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी चीज़ के regarding justice चाहिए, you can approach the courts. But in reality क्या ऐसा होता है? Real scenario में ऐसा नहीं होता है because litigation is expensive. Okay? इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है. पहली बात, लॉयर हायर करना, बहुत सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन देखना, प्लस इट इज़ वेरी वेरी टाइम टेकिंग. सो इन सारे रीजंस को कंसिडर करते हुए बहुत लोग जस्टिस का रूट नहीं लेते डिस्पाइट फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो रियल सिनारियो इज़ लाइक दिस. लेकिन इसमें भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं. मान लीजिए कोई पुअर इंसान है, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू provide the person with a lawyer if they want to represent their case. So इस तरीके provisions हैं, but in real scenario justice is available for everybody, but a vast majority of people are not able to have it available for themselves because of the situations. Legal procedures में बहुत ज़्यादा money की ज़रूरत होती है. As I told you, paper work चाहिए होता है. Also it takes up a lot of time, and that is why the justice for all वाली real time scenario is far from true. लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है? येस, डेफिनेटली प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ जस्टिस फॉर एवरीबडी. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to the court to get justice often seems remote. So this is very very basic कि हम लोग justice for all कह रहे हैं, access for all कह रहे हैं, लेकिन कोई भी आप एक daily wage laborer का सोचो. Person who pulls the rickshaw, okay, he is dependent on the wage from that day. A person who is a laborer working on a construction site, he is dependent on the wage for that day. अगर वो लोग ये छोड़ करके कोर्ट में केसेस लड़ने लग जाएं, so they will not have enough money to run their families. That is why in real time scenario access to justice is very very meek, जहाँ पे सब कोई इसको नहीं पा सकते. It is very very difficult. सो इस वजह से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक मैकेनिज्म डिवाइस कर दी. व्हाट इज़ दैट मैकेनिज्म? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ नोन एज पिल. मतलब एक पिल दे दिया उस प्रॉब्लम को ताकि वो सॉल्व हो जाए. एंड व्हाट इज़ इट? इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो आपको नेम से ही समझ आ रहा है कि पब्लिक के इंटरेस्ट की कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मैटर हो, तो कभी कभी क्या होता है, अगर वो इंसान खुद ब खुद केस फाइल नहीं कर पा रहा, देन द पब्लिक कैन टेक केयर ऑफ दैट एंड फाइल इट. तो द कोर्ट विल लुक इन टू इट एंड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड इट विल पास द रिक्विजिट जजमेंट. इससे क्या होगा? पीपल हु कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट्स फॉर जस्टिस, उनकी चांसेस ऑफ हैविंग एक्सेस टू जस्टिस विल इंक्रीज. क्योंकि क्या होता है, दिस केसेस आर नॉट दोज केसेस जो आप तक लिमिटेड हैं. It need not be that it has happened with you only then can you file the case. No. If it is with regard to the general public also, जहाँ पे आपको लग रहा है कि something wrong is going on, then you as an individual, अगर आपकी capacity है तो you can approach the court, you can bring it to their knowledge and the court can pass a judgment based on that. It allows any individual or any organization to file a PIL. कहाँ पे फाइल कर सकते हो? हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर वायलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, कोई डोमेस्टिक मेड है who is coming to help you with your domestic chores at home. Okay, so what happens कि अगर ये, if you feel that she is being paid low wages, she is not being given good treatment, या फिर कुछ भी टाइप का physical abuse किया जा रहा है, so what happens is if that lady cannot go, you can file the PIL on behalf of that person. So then if the rights are violated, courts इसे देखेंगी and then the court can grant justice to the person whose rights have been violated. कौन कौन से इंस्टांसेस में देखने को मिला है PIL का यूसेज? कभी कभी बॉन्डेड लेबरर
मर्डरर्स को रेस्क्यू करने के लिए किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया है केस, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द लॉ. Securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete, etc. तो जहाँ पे भी आप डिस्क्रिपेंसी देख रहे हो कि कोई भी हु इज़ इन पावर इज़ ट्राइंग टू मिस यूज देयर अथॉरिटी, या फिर पुलिस ऑफिसर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर इन जनरल कंट्री में कुछ बुरा चल रहा है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, देन यू कैन अप्लाई योर PIL पावर एंड सिक्योर जस्टिस. प्रोविजन ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ PIL. इससे क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में अब एक टाइम की मील दी जाती है ताकि बच्चे की एजुकेशन इंक्रीज हो, एंड द राइट टू एजुकेशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, वी आर एबल टू फुलफिल दैट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन सिक्योर्ड थ्रू द यूसेज ऑफ PIL. Olga Tellis judgment. What is this judgment? This is about the slum area of Dharavi and Mumbai. So what is the slum area of Mumbai? 1985 में this case was fought between Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. Actually BMC ने ये बोला था कि ये slum like areas बहुत ही dehumanizing है, और इनके नाम पे इन्होंने बोला था कि इस टाइप के slums को perish कर देना चाहिए. They should not be allowed to live in Bombay. But the slum people, they had fought for their rights and they had said that Article 21 is about right to life. Okay? And right to life में अगर आपके पास right to livelihood नहीं है, वो लोग वहाँ पे क्यों रह रहे हैं? To earn their living. So if you don't have livelihood, that means your fundamental right, which is right to life, guaranteed under Article 21, ये actually नहीं दिया जा रहा है आपको. ओके, सो ऑन दिस बेसिस दे हैड फॉट फॉर इट, एंड इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट येस, राइट टू लाइवलीहुड, जस्ट दैट इज दैट पीपल शुड हैव द कैपेसिटी टू अर्न. वो लोग अपने विलेजेस को छोड़ के इसलिए आए हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक स्कोप इन देयर सिटीज एंड टाउन्स. दैट इज वाई देव कम टू मुंबई. So they cannot be asked to leave until and unless you are able to rehabilitate them, or you are able to provide them with some livelihood in some other area. So इस तरीके से ये judgment आई थी, and this is how again Supreme Court had brought about a new thing which helped the people who were poor. Justice delayed is justice denied. एक और जो major case we see in India is about the pendency. सो क्या है, केसेस बहुत सारे हैं, जजेस का स्ट्रेंथ बहुत लो है, दैट इज़ वाई काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं और कई सालों तक चलते रहते हैं. इनफैक्ट यू विल सी दैट 1920s में सपोज कोई केस हुआ था तो 1950s में जजमेंट आ रही है. सिमिलरली 2000 में इफ़ यू फाइल्ड अ केस, 2020 तक यू आर स्टिल हैविंग द हियरिंग्स. सो दिस वे कॉमन पर्सनस एक्सेस टू जस्टिस बहुत कम हो जाती है जब आप उसको डिले कर देते हो. क्योंकि जब यहाँ पे आपको चाहिए 2000 में यू हैव फेस्ड समथिंग, 2020 में यू आर गेटिंग द जजमेंट, almost the entire life has passed away. So that is why this is as equivalent to not having justice at all. So this is also one issue that is there with the Indian justice system. Strength of judges in comparison to the number of litigation cases is abnormally low. What do you mean? Law nahi, this will be low. Okay, so please correct this. Strength of judges matlab number of judges. Okay, strength of students in the class, that means number. So number of judges बहुत कम है लेकिन number of cases बहुत ऊपर है. इसी वजह से क्या होता है, justice देने में बहुत डिले हो जाती है. Also meting out justice is a very long process क्योंकि आप उसमें rush नहीं कर सकते हो. You have to understand the entire case and then only give your judgment. Otherwise क्या होगा कि आप कभी कभी उनको अक्यूज़ कर दोगे जो एक्चुअली गिल्टी नहीं थे, एंड जो गिल्टी थे उनको आप एक्विट कर दोगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्विट? आई विल say that to you in the upcoming slide. Coming to the conclusion, this is all about the judiciary. क्या कोर्ट का सिस्टम है, कैसे अपॉइंट रिमूव होते हैं, what is the power of judicial review, what do you mean by PIL, what is the role of judiciary, how is there a difference that is maintained between the three organs of government, everything we have understood. So Indian judiciary, it plays a very very crucial role in a democratic India, because डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए इंडियन जुडिशरी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, इट हैज़ टू बी वर्चुअस. इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इफ़ दे ट्राई टू यूज देयर पावर एंड डू थिंग्स दैट आर अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, then the judiciary will intervene through its power of judicial review and strike down that law. So it also helps to protect the fundamental rights of the citizens. With that, we come to the end of the chapter, coming to some of the important words. Meaning of acquit. It refers to the court declaring कि person is not guilty. For example, दो लोग हैं A and B.
अगर ये इस्टेब्लिश हो गया कोर्ट को कि बी ने कुछ गलती नहीं की है तो इनको अक्विट कर देंगे। अक्विट मतलब ऑपोजिट ऑफ अक्यूज, एंड सपोज ए को अक्यूज कर देंगे, सो दैट मीन्स ए हैज कमिटेड द मिस्टेक एंड बी हैज बिन अक्विटेड ऑफ इट। दैट मीन्स दे हैव नॉट डन द मिस्टेक दैट वाज एक्चुअली बीइंग ट्राइड फॉर। टू अपील मतलब आप पिटीशन को फाइल कर सकते हैं टू अ हायर अथॉरिटी, लाइक यू सॉ इन द गेम ऑफ क्रिकेट। कमिंग टू कंपनसेशन, मनी गिवन टू मेक अमेंड्स। अब किसी भी चीज़ की वजह से अगर किसी को इंजरी या लॉस हो जाती है तो उस चीज़ में आप कंपनसेशन देते हो। फॉर एग्जांपल, आप ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस कर देते हो अपने एरिया से एक डैम को बिल्ड करने के लिए, तो आपको उनको रिहैबिलिटेट भी करना होगा, उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो फॉर द लॉस दैट दे आर इनकरिंग यू आर गिविंग देम समथिंग इन रिटर्न। एविक्शन मतलब रिमूवल फ्रॉम अ सर्टेन एरिया, जैसा कि बीएमसी कह रही थी in the case of Olga Tellis, right? That the people who have left their homes have come here, they should be asked to move from there, they should be removed from there. So that is eviction. ये eviction भी ट्राइबल लोगों के साथ बहुत देखी जाती थी। Violation is basically breaking of a law or breaching any kind of fundamental rights. So that is the meaning of violation. With this, we have completed this chapter. I hope it has been absolutely clear to you. कोई भी doubts है, please reach out in the comment section. Last but not the least, do hit the like button because that keeps us going. Also follow our lovely channel on Facebook, Instagram, Twitter, and definitely on YouTube, and share us with all your love so that we can keep coming forward with much more amazing courses for you guys. Till then, take care, bye bye, and stay safe.